विदाउट माइक चलेगा विदाउट माइक ठीक है Higher Education Society is a trust founded in the year 1982. Apart from academic excellence and the cultural advantage, Rizvi Trust, Rizvi colleges are known for getting awards and promoting sports. Sports also we equally give importance because there is a general impression among the parents that you are going to the college to study and you don't waste your time actually in sports. But I am of the firm opinion, and I am sure everyone will agree, that sports is no more waste of time. It's a career. You make name, you make fame. So as with academic degrees, the students get the advantage of progress in life. The sports also bring them on the top of the world. Rizvi colleges and Rizvi Sports Club have produced test players, Ranji Trophy players, and bright students who have taken part in sports is the hockey, football, and many other games. I am happy to announce you have asked this question, otherwise it would have been irrelevant that you all have been invited and we are talking about ourselves. In cricket, we have been giving junior college and degree college. Apart from that, our school, which is well known, since last 15 years, Rizvi Sports Club, Rizvi colleges, Rizvi schools have been achieving the best result, and we are number one insofar as hockey is concerned, finalist. Insofar as football is concerned, we are finalist. And there are many sports. So the whole idea was to start this initiative. Like we are promoting sports, we are also promoting in the athletic field. I am president of Athletic Association of Mumbai, and athletes also have a good privilege. It has got a great advantage. Taking lessons from that, and in the interest of students and public, Madam Rubina Rizvi has taken the initiative to start this marathon, which is not only, as our ambassador has explained, youth advantage in health, but also it's a sort of a lesson to others and inspiration for others that you gain from this, and we are successful, and thank you very much actually for putting this question. आपसे है कितना इम्पोर्टेंट है कॉलेज में इस तरह का इनिशिएटिव लेना और स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करना, सर आप बता पाए? सब सोचते कि कॉलेज में उसी पढ़ाई होता है, लेकिन पढ़ाई के साथ बहुत सारा कल्चरल प्रोग्राम भी होता है और इसके साथ स्पोर्ट्स को भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है कि आजकल जितने सारे इंटरनेशनल लेवल में खेलते हैं सारे बच्चों स्टूडेंट बनते हैं और कॉलेज ही इनको सिलेक्ट किया जाता है पहले। तो हर कॉलेज में हर इंस्टीट्यूट ऐसे स्पोर्ट्स को थोड़ा बढ़ावा देंगे, सपोर्ट करेंगे तो हमारा देश जो उम्मीद रखा है कि ओलंपिक में कब मेडल आएगा तो वो जल्दी से जल्दी आ जाएगा। अभी देखो 2016 में जब मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया था, सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था।
लेकिन आज टोक्यो ओलंपिक में देखो काफ़ी बच्चों ने मेडल हासिल किया है। तो ऐसे कॉलेज वाला जो सपोर्ट कर रहे स्पोर्ट्स को तो वो काफ़ी अच्छा होता है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, क्योंकि हर बच्चे तो पढ़ाई करते हैं लेकिन सब पढ़ाई में सक्सेसफुल होंगे ऐसा कोई गारंटी नहीं है। जिसके पास टैलेंट जैसे मेरे अंदर में टैलेंट था, इसलिए मैंने स्पोर्ट्स में अच्छा प्रदर्शन किया मैंने। तो ऐसे काफ़ी बच्चा है जिसके पास टैलेंट है, तो इसी कॉलेज में जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं यहाँ पे अच्छा स्पोर्ट्स पर्सनालिटी निकलते हैं। तो ऐसे ही कॉलेज के बारे में जो मुझे बताया उन्होंने, तो काफ़ी इंटरनेट से बच्चे इसी कॉलेज में बिलोंग करते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। ऐसा वाला करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा फ्यूचर में। आपसे जानना चाहूँगा, जैसे दीदी ने हमने कहा कि जब उन्होंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था तब इतना मतलब अवेयरनेस नहीं था स्पोर्ट्स को लेकर, जो इनिशिएटिव भी आपने लिया है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या थॉट प्रोसेस था उसके पीछे मैराथन के साथ जो इनिशिएटिव आपने लिया है कैंसर को लेकर? जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि रिजवी स्पोर्ट्स क्लब, रिजवी कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस क्लब टोटल 20 to 21 गेम्स खेलते हैं। सो रिजवी स्पोर्ट्स का बहुत नाम है, बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं रिजवी में, तो हमेशा ही रिजवी स्पोर्ट्स में आगे रहा और इंशाल्लाह और हम प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैराथन इज समथिंग वेरी डिफरेंट। मुझे ऐसा लगता है कि सारे स्पोर्ट्स जो है ना वो रनिंग से जुड़े हैं। अगर हमें क्रिकेट खेलना है तो वार्म अप के लिए हमारा कोच क्या कहता है, थोड़ा भागिए। अगर हमें जूडो करना है तो वार्म अप के लिए कोच क्या कहता है, थोड़ा भागिए। सो आई बिलीव इट इज अ फर्स्ट स्पोर्ट्स। सो मैराथन is not only just a sport, it's a very good thing to live a healthy life. Marathon को start करना was not easy, it was always very challenging. But जैसे हमने Help Yourself Foundation को introduce किया, because डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी जो खुद बहुत इनिशिएटिव लेते हैं लोगों की मदद करने के लिए, वो चाहे किसी भी माध्यम से हो, पर्सनल हो या माइनॉरिटी एजुकेशन के जरिए बहुत लोगों की वो मदद करते हैं। मगर जब हम नहीं रहेंगे तो ये मदद का कारवां कैसा चलेगा? तो हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन इसीलिए बना ताकि हम रहे ना रहें, ये मदद का कारवां चलता रहेगा। इसीलिए ये हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन इन एग्जिस्टेंस आया है। मगर मैराथन को लाना भी एक वजह थी। जब मैं लोगों को चैरिटी के लिए कह रही थी, कैंसर अवेयरनेस के लिए बुला रही थी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों तक रीच करना और अपनी बातें पहुंचाना या एक्सप्रेस करना। लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल्स तो है ही ना, मगर हॉस्पिटल्स कहाँ तक जाएंगे? दे कैन नॉट गो डोर टू डोर and make you understand the importance of the cancer disease which has come up, and हर 8 में से एक औरत को आज हो रहा है। तो जब हम मैराथन करते हैं तो हमारे मैराथन के जरिए हम बार बार इस्तेमाल करते हैं साकिब रिजवी कैंसर अवेयरनेस मैराथन, उससे जुड़िए। आप देखेंगे कि मेरा स्लोगन रहता है, आपने जो टिकट्स खरीदी हैं, जो रजिस्ट्रेशन किया है, हर पैसा वो चैरिटी में जाता है, बिकॉज रिजवी चैरिटी करता है, रिजवी को चैरिटी की कोई ज़रूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। सो ईच पेनी दैट यू गिव वी सी टू इट। बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स आते हैं, कीमोथेरेपीज हो जाती है, कल अगर आप ग्राउंड पर रहेंगे तो आप खुद उनसे मिलेंगे। सो इसीलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है, ताकि वैसे रिजवी को अगर मैराथन कराना है तो रिजवी का 10,000 स्टाफ इंक्लूडिंग बच्चे और स्टाफ मिला के 10 से 12,000 है। ये सिर्फ हम मुंबई की बात कर रहे हैं। तो अगर इलाहाबाद, जौनपुर, करारी की बात करें तो आई एम श्योर BKC के 4 ग्राउंड लेने पड़ेंगे मुझे। बट बाहर के रजिस्ट्रेशन हम ओपन करते हैं, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम आवर पीपल आई वांट ऑल अराउंड इंडिया टू नो इट, टू डू इट एंड टू गेट इट ओवर। मैम ऑल्सो आपसे जानना चाहूँगा कि जो इनिशिएटिव आपने लिया है उसके साथ साथ मैराथन पर बहुत सारे यूथ भी है हमारे देश में, तो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को जोड़ना कितना ज़रूरी है? जैसे ज्योति मैम है और भी बहुत सारी स्पोर्ट्स की पर्सनैलिटी, तो क्या फ्यूचर में आप देखेंगे कि और भी स्पोर्ट्स की पर्सनैलिटी इस इनिशिएटिव से जुड़े? बहुत अच्छा सवाल किया, आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर इट। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि मैम किसी भी इवेंट को बढ़ाने के लिए आपने किसी सिनेमा वालों को क्यों नहीं बुलाया? फिल्मी लोगों को बुलाइए। फिल्मी लोगों को बुलाने से मीडिया छापती है, फिल्मी लोगों को बुलाने से मीडिया लिखती है, फिल्मी लोगों को बुलाने के लिए आपका इवेंट बड़ा हो जाता है।
मुझे ऐसा लगता है कि आई एम डूइंग इट फॉर अ कॉज। और मैराथन एक स्पोर्ट्स इवेंट है। अगर मैं स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को नहीं बुलाती हूँ और फिल्मी लोगों को बुलाती हूँ तो वो कितना स्पोर्ट्स से कनेक्ट हो पाएंगे ये मुझे नहीं पता। इसीलिए मेरी फर्स्ट चॉइस, अगर मैं स्पोर्ट्स इवेंट कर, मैं फिल्मी इवेंट भी ज़रूर करूँगी, क्योंकि आप ज़रूर देखेंगे कि डॉक्टर क्या कहते हैं कि रिजवी फिल्म प्रोडक्शन आने वाला है बहुत जल्दी, जिसके लिए ज़रूर मैं आप लोगों को इन्वाइट करना चाहूँगी। Akhtar Rizvi Films production and Akhtar Rizvi Films and Rumi production is on the floor। तो ज़रूर वो फिल्मी दुनिया के लोग भी मुझसे ज़रूर जल्दी जुड़ेंगे। मगर ये एक स्पोर्ट्स इवेंट था और हम एक महिला एथलीट ढूंढ रहे थे, क्योंकि ड्यूटी मैम कॉमनवेल्थ में जाने वाली हैं और हमारे देश को रिप्रेजेंट करने वाली हैं। तो मैं चाहती थी कि दिल से और सिंसियरली वो हमें ज्वाइन करें, एंड इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी टू अप्रोच हर। It was a humbleness that just one request। वैसे आप वैसे मेरा एक्सपीरियंस है, जब भी मैंने किसी खिलाड़ी को अप्रोच किया है मेरे लिए बहुत आसान हो गया। तो मैम किस तरह की कैटेगरीज है और किस तरह का कैटेगरीज में कितनी से रेसिंग 20 किलोमीटर का आप प्रोड्यूस कर रहे हैं पहली बार, बस क्या कैटेगरीज उसका बता दीजिए। इस बार पहली बार हमने जो हमारे स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं मिस्टर आमिर, उनके साथ हमने एम्स में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमने अपने आप को रजिस्टर किया है। और फिर हमें ये पता चला कि 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर को रेस कहते हैं, मैराथन नहीं। मैराथन करने के लिए हाफ मैराथन होना ज़रूरी है, दैट इज़ 21K। तो तब हमने डिसाइड किया कि हम इस बार पहली बार 21K करेंगे, फिर इंशाल्लाह फुल मैराथन करेंगे। सो इट वॉज ईजी फॉर मी। मगर जैसे हमने लास्ट 3 मैराथन में 2 मैराथन्स में कैटेगरीज रखी थी, क्योंकि महिलाएं भी दौड़ती है, भले ही वो मर्दों से पास नहीं दौड़ती होंगी मगर मर्दों से पास भी एक दौड़ती है। सो इसीलिए बहुत सारी कैटेगरीज हैं और हमने कैटेगरी, क्योंकि कहते हैं ना कि कैटेगरी इसीलिए क्योंकि एक छोटा बच्चा, जैसे मैंने ओपन मैराथन रखा है, कोई कैटेगरी नहीं रखी है, तो बच्चों को हम क्योंकि ये रिजवी का एक मैराथन है जहाँ पे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी दौड़ते हैं, तो उनको कैटेगरी वाइज हम अवार्ड देना चाहते हैं, क्योंकि रिजवी को सबको खुश करना है। मैम, एक महिला होने के नाते क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किया गया, क्योंकि जनरली देखा गया कि मैराथन जो है प्रीडोमिनेटली पेट्रियार्कल सोसाइटी को, ऐसा मुझे लगता है। आपकी अगर नजरिए से देखो तो महिला होने के नाते क्या क्या चैलेंजेस आए, अगर उसके बारे में रोशनी जरूर आपकी। Yes, it's a big question and a big answer towards it. No offense, please. वैसे I do respect the males because I don't believe in feminism। मुझे ऐसा लगता है कि आदमी में एक अलग किस्म की क़ुव्वत होती है जिसे अल्लाह पाक ने दिया है, सो उसे हम डिस्टर्ब नहीं करके उनके कॉम्पिटिटर्स नहीं बनकर अगर हम कंपेनियंस बने रहें तो शायद हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी, डू नॉट हिट द मेल ईगो and do not try to be the competitor, just be companions to them, it's going to be always easy, yeah, because God has given them that prestige, let it be there। so मेरे लिए तो यही है। बट जब मैंने मैराथन का डिसीजन लिया and I met a company, I will not name them, it was just 2 months and they told me कि मैडम 2 महीने हम तो बड़ा बड़ा मैराथन करते हैं, आप कैसे कर पाएंगे? तो भले ही आपके पास रिजवी का स्टाफ हो, वो तो टीचर्स हैं, नाइव है बहुत, सिर्फ टीचर्स की टीम को लेके आपको मैराथन करना है। मैराथन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, साल भर लगते हैं, उसके मेडल्स बनाने पड़ते हैं, टी शर्ट बनाने पड़ते हैं, बहुत कुछ, बहुत डीमोरलाइजेशन मुझे फील हुआ कि आप तो एक महिला हैं, यू नो, बड़ी बड़ी कंपनीज ऑर्गेनाइज करती हैं। तो आई सेड कम अगेन, बड़ी बड़ी कंपनीज ऑर्गेनाइज करती है, ऐसे कम अगेन, उसके पहले क्या कहा आपने? बड़ी बड़ी कंपनी, ऐसे नहीं, उसके पहले क्या कहा? तो बोले, मैंने कहा कि महिला। ऐसे सर, अगर महिला मर्दों से डरती तो मर्दों को पैदा ही नहीं करती। हम चांद पे पहुंच गए, फिर भी आप हमारे एम्पावरमेंट की बातें करते हैं। ठीक है, आप उठिए और जाइए,
मैं आपको मैराथन के दिन मिलूंगी और इंशाल्लाह आप ही फ्लैग होस्ट और फ्लैग ऑफ करें। तो साहब चले गए, बट मेरे लिए भी एक चैलेंज था। और शायद जिन लोगों ने देखा है रिजवी फर्स्ट मैराथन, वो इस बात के गवाह हैं, यूट्यूब इस बात का गवाह है। आप जरूर घर जाइए और देखिए, एक महिला होने के बावजूद, और ये आप कहते हैं ना नाइव टीचर्स नाइव नहीं होती, वो दी टीचर्स होती है। आज मैं एक लॉयर हूँ तो अपने उस्ताद की वजह से, आज आप प्रेस हैं तो आप अपने उस्ताद की वजह से। तो उस्तादों का एक अपना मर्तबा होता है, तो उनको लेकर ही मैंने फर्स्ट मैराथन किया, जिसमें आई थिंक सो मोर देन तभी भी 5000 लोग थे। सेकंड किया तो भी बहुत लोग थे। थर्ड तो ऑनलाइन था तो भी बहुत लोग थे, बहुत लोग ऑनलाइन जुड़े। अब फोर्थ में तो आप खुद ही कहोगे। और इसमें मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ऐड करना चाहता हूँ एक लाइन यहाँ पर। तो मैम ने यहाँ पर कहा कि चैलेंजेस की यहाँ पे बात की महिलाओं की, तो आपको बताना चाहूंगा शी इज द ओनली वुमन हु इज ऑर्गेनाइजिंग मैराथन ऑल अक्रॉस द कंट्री। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेल जो ये लीग है मैराथन की, उसमें शी इज द ओनली वुमन। तो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल प्राउड ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस इनिशिएटिव। जो भी कुछ बड़े काम हुए, महिलाओं ने बहुत शुरुआत की है सोसाइटी में, और कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स के फील्ड में, मैराथन की फील्ड में रीना जी का जो एक इनिशिएटिव नहीं कहेंगे क्रांति है। आपको देख के हो सकता है कि सभी लोग ऐसा करें। स्पोर्ट्स की बात हो रही है और बहुत बड़ा ये इवेंट होने जा रहा है। छोटी चांद जो है यहाँ पे स्पेशली आई हुई है और डॉक्टर साहब साथ में बैठे हैं। ये 4th एडिशन है, तो इसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि हट करके इस बार कैसे है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया हर इवेंट में होता है। इस बार ऐसा क्या है जो हट करके आप लोगों ने सोचा? पहले मैराथन तो मेरा इनिशिएटिव था, खुद का, जिसमें मैं सीख रही थी। दूसरे मैराथन में मैंने बहुत कामयाबी हासिल की। तीसरा मैराथन क्योंकि मैं कर नहीं पाई, ऑनलाइन था, तो आप सबको बता दूं कि हमने कार्डियक एम्बुलेंस रिलीज किया है। थर्ड मैराथन में, जो कि रिजवी कॉलेज के अंदर इसी प्रीमाइसेस में ऑनलाइन था। बहुत दिग्गज लोग जुड़े थे फ्रॉम ऑल दी वॉक्स ऑफ लाइफ, अफगानिस्तान एम्बेसडर से लेके पॉलिटिशियन से लेके पुलिस, सब जुड़ी थी हमारे साथ में। उसको इनॉग्रेट करने के लिए राज ठाकरे जी की वाइफ खुद शर्मिला ठाकरे जी आई थी उस एम्बुलेंस को इनॉग्रेट करने के लिए। सो इट वॉज अ गुड इनिशिएटिव, क्योंकि कैंसर अवेयरनेस पे हम रिसर्च करते रहते हैं, और कोरोना के वक्त वैसे भी हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन जो एक रिजवी ग्रुप का इनिशिएटिव है, बहुत कुछ कर चुका था। राशन बांटने से लेकर, लोगों की घर घर जाके मदद करने से लेकर, हमने बहुत कुछ कर दिया था। बट उस दौरान मैं ये देख रही थी कि एम्बुलेंस की काफ़ी दिक्कत थी, स्पेशली कार्डियक एम्बुलेंस की। Cardiac ambulance was not easily available. When Dr. Rizvi was hospitalized that time, not with corona, but with a minor heart attack, that time मुझे 1 से 1.5 घंटा लगा कार्डियक एम्बुलेंस अरेंज करने के लिए। तो जैसे ही डॉक्टर रिजवी साहब हॉस्पिटल से आए, हम दोनों का एक ही स्टैंड था कि हम कुछ नहीं करेंगे, इस बार हम फुल्ली इक्विप्ड कार्डियक एम्बुलेंस रिलीज करेंगे, और वो उसी दिन होगा कैंसर अवेयरनेस डे के दिन, जो होता है 4 फरवरी को। मगर इस बार मैं 4 फरवरी को नहीं कर पाई, क्योंकि कोरोना के पेंडेमिक की वजह से गवर्नमेंट की परमिशन नहीं मिली। बट जैसे ही मुझे परमिशन मिली, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ आपसे कि अपार्ट फ्रॉम मैराथन, अपार्ट फ्रॉम दिस इवेंट, हम कैंसर अवेयरनेस की बातें करते हैं, तो आपको बता दूं कि अपार्ट फ्रॉम दिस इवेंट हैज बिकम अ फंड रेजिंग इवेंट, जहां पर रिजवी Education Society, Rizvi Builders, the whole Rizvi group with Help Yourself Foundation has come up with an initiative of introducing a bus which is known as cancer awareness, cancer screening bus. कैंसर स्क्रीनिंग बस, इसी बहुत सारी कैंसर स्क्रीनिंग बस है, टाटा वालों के पास है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने, एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट्स ने इंट्रोड्यूस किया है। बट जब हम देख रहे थे कि क्या नई चीज़ आई है, सो टोमोसिंथेसिस करके एक नई टेक्नोलॉजी आई है जो ब्रेस्ट को 3D इमेज से और इमीडिएट विद इन 24 आवर्स रिजल्ट देती है। तो वो बस हम लाना चाह रहे हैं। डॉक्टर रिजवी के माध्यम से 50 लाख का हमें डोनेशन मिला है, थैंक यू सर। एंड मोर, इट्स द बस इज कॉस्टिंग अस मोर देन 1 crore,
So that is why ये registrations हैं tickets के. Each penny is going to go for this bus, and I'm sure जब भी वो बस ऑल ओवर मुंबई, ऑल ओवर महाराष्ट्र चलेगी और आपकी नज़रों के सामने से गुजरेगी, आप ये खुलकर कहना और जोर से कहना कि इस बस में मेरा भी कंट्रीब्यूशन है. मैंने भी रजिस्टर किया था और मैं भी दौड़ी थी, क्योंकि ये बस सिर्फ आप लोगों के साथ से और आप लोगों की कोशिश से और मेरी कोशिश से ये बाहर आई. You can see the bus on the screen behind, it's right there. So yes, you can see that there. That's the image of that mobile bus, which is known as Mammography bus. Yes. जान, जैसे कि आप इस इवेंट में आई हैं, क्योंकि हम सबके लिए बहुत बड़ा एक मौका है आपको डायरेक्ट सामने देखने का. अक्सर आपको ट्रैक पे देखा है, तो क्या लगता है आपको कि आज खेलो इंडिया जैसा बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं देश भर में, इस तरह के जो इवेंट्स किए जाते हैं, मैं इसको इवेंट नहीं कहूँगी, ये एक बहुत बड़ा अवेयरनेस का सोर्स है जिससे कई लोगों को हेल्प मिलेगी. और मैडम ने पहले कहा कि अगर हम नहीं रहेंगे तो आगे कैसे ये सब होगा. क्या लगता है आपको ये जो इवेंट है ये आगे जाके या कितने लोगों के लिए वाकई में जो है बहुत ही ज़रूरी है? और गवर्नमेंट तरफ से जितनी सारी स्कीम है, चाहे फिट इंडिया हो, खेलो इंडिया स्कीम हो, ओलंपिक पोडियम स्कीम हो, साइंस स्पोर्ट्स और ट्रेनिंग सेंटर हो, जितनी सारी स्कीम है वो सारी बच्चा खुद का टैलेंट दिखाने के बाद इनको दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है. लेकिन ये जो रूरल एरिया में जो कंपटीशन होता है, जैसे मैराथन हो रहा है या कुछ छोटा मोटा कंपटीशन होता है, इसी में बच्चा टैलेंट हम ढूंढते हैं, इसके अंदर टैलेंट है, इसको ढूंढ के निकालते हैं, फिर बस इसके पास टैलेंट होने के बाद इसको अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता है, फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जितने सारी स्कीम है इसको प्रोवाइड किया जाता है. तो मैं भी बचपन में जब मैं स्कूल लेवल में रनिंग कर रही थी, मेरे पास टैलेंट था, लेकिन किसको पता नहीं चला था कि दूसरे के पास टैलेंट है करके. स्कूल लेवल में जब मैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में अच्छा प्रदर्शन किया, मैंने साल भर प्रदर्शन अच्छा करके चैंपियन बन गई. फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट का सेक्टर से मेरे को सारा सपोर्ट मिला, फिर मैंने आज मैं इतना बड़ी एथलीट बन पाई. तो ऐसे कॉलेज तरफ से जो मैराथन हो रहेगा, स्पोर्ट को प्रमोट करेगा, देखो हर चीज़ को हमें प्रमोट करते हैं. पढ़ाई में लाखों रुपया खर्चे करते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के में पढ़ाई से ज़्यादा पैसा खर्च होता है, लेकिन स्पोर्ट्स में ज़्यादा खर्च होता है खुद का डाइट के ऊपर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ऊपर, और जाना आना बाहर कंट्री का जो ट्रेनिंग सेंटर जाना, कंपटीशन लड़ना, बहुत पैसा खर्च होता है. खुद का फिजियोथेरेपी रखना, कोचेस रखना, तो ये सारा एक एथलीट खुद नहीं कर पाते हैं. तो ऐसी बड़ी बड़ी जो अनुष्ठान होते हैं वो प्रोवाइड करते, सपोर्ट करते हैं. इनके वजह आज बहुत सारे एथलीट देश विदेश में नाम कर रहे हैं. जैसे मेरे जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करो KIT यूनिवर्सिटी, वो मुझे 7 साल से मुझे सपोर्ट कर रहा है. तो काफ़ी ये इस कॉलेज का अनुष्ठान भी, फंक्शन भी बहुत काफ़ी बच्चों को सपोर्ट किया है. मेरे आने के टाइम में तो बोल रहे थे, सुना मैंने कि काफ़ी क्रिकेट लोग इधर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब कॉलेज से बिलोंग कर रहे हैं. बहुत काफ़ी बच्चों को हॉकी से लेके जूडो से लेकर काफ़ी बच्चे इधर सपोर्ट मिल रहे हैं इनको. तो इनके वजह आज देश में बहुत सारे इंटरनेशनल बच्चा मिला है और देश का नाम रोशन कर रहे हैं. तो ऐसे बहुत सारे ऐसे अनुष्ठान है जो कोर्स को प्रमोट करेंगे तो काफ़ी बच्चे आएंगे, देश का नाम रोशन करेंगे. आपसे आखिरी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि रवीना जी ने कहा कि जल्द ही फिल्म के लिए भी एक बड़ा लॉन्चिंग होने जा रहा है, और रिजवी जो स्पोर्ट्स के लिए इतना कुछ करते आ रहा है और आप खुद एक स्पोर्ट्स के लिए बहुत डेडिकेटेड पर्सन है, तो कब देखेंगे हम कि रिजवी की जो है बहुत बड़ी एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बने? ऐसा कब होगा? क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए जितना काम किया जा रहा है, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए जो लोगों को आगे बहुत मदद करे. लेकिन यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट कोई आसान चीज नहीं है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑल्सो एंड द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स ऑल्सो do not provide sufficient budget to promote sports. Now, university means it's not a building, it is a structure. The infrastructure requires quite a lot of things, and it requires expert to coach and train. All this is not possible in today's time, and I pray that it come up in future to see that actually your suggestions actually are put right. But we taking part in 20 sports have proved ourselves that
It may be called as a mini university of sports. Now, to put the matter right, just for your information, Mumbai University makes actually marks and grades for all the colleges affiliated to Mumbai University. More than 700 to 800. And every year, since last 10 years, in grades in Mumbai University, Risvi colleges are number 1. So it is a mini university for sports which gives encouragement, which also draws inspiration to other colleges and institutes to participate that way and promote. अब इस बार कुछ हटके देखा जा रहा है, हम एक मैराथन एंथम लेकर आ रहे हैं और ये एंथम का नाम आई थिंक ये जो आपकी टीम है और आपके जो लीडरशिप के अंदर और सर्च लीडरशिप के अंदर ये जो एंथम आया है मैराथन एंथम का उनकी बहुत सुपर हिट होता है, उसके बारे में थोड़ा कुछ जानना यस, मैराथन एंथम इस बार पहली बार है बिकॉज जब भी हम मैराथन जब भी मैं खुद भी जब ट्रेडमिल पे अक्सर तो नहीं होता है ऐसा, आई एम नॉट फिट लाइक हर, मौका नहीं मिलता है, बट जब भी ट्रेडमिल पे हो या नीचे आई लव वॉकिंग, सो व्हेनेवर आई वॉक आई लव टू लिसन म्यूजिक। तो मैं चाहती थी कि रिजवी का एक ऐसा मैराथन एंथम हो कि जब भी कोई भी मैराथनर या कोई भी एथलीट जब भी चले या दौड़े वो एंथम गुनगुनाए, सुने और उस रिदम के साथ में अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। सो रिजवी एंथम का नाम है जज्बा, क्योंकि जीने का जज्बा भी है, कुछ करने का जज्बा भी है, लड़ने का जज्बा भी है, लोगों से नहीं मगर उस बीमारी से। सो इसीलिए उस रिजवी एंथम का नाम जज्बा है, जिसको अनीश मैथ्यू जी जो आप लोगों के सामने हैं उन्होंने गाया है, कंपोज किया है और बहुत सुरीली आवाज़ में उसको कंपोज किया। आई एम श्योर इट इज़ बीन रिलीज नाउ, सो यस यू आर रियली गोइंग टू एंजॉय एंड इट्स गोइंग टू बी अ लाइफ टाइम मैराथन फॉर अस। इसे कहते हैं रिजवी मैराथन जज्बा।